શું ભાઈ કેમ છે મજામાં ઉધર 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 इधर चलो all videos on, come on. See, in the last lecture, we started with a new variety that was balance sheet of last year given to you, right? Yes. Last year's balance sheet was provided. Those types of sums we started in the previous lecture, right? So we are continuing from there. We are continuing from those types. Okay? I want you all to take sum number 19. 19th problem all of you take. See 19th problem. Well, all videos on, off videos will be out. Nishant, Ruchi, Alvin. So let's start. Sum number 19 all of you take 19 sum. Start with the payment side. Now see opening balance sheet has been given to you 1406 का दिख रहा है आपको? So is there any need to make opening balance sheet? ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है राइट 19th सम कैपिटल फंड भी दिख रहा है तो आपको कुछ बनाने की जरूरत है कि नहीं है नहीं कैपिटल फंड दिया ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया है ठीक है कम टू द पेमेंट साइड यंग स्पोर्ट्स क्लब दादर योर एंड डेट इज 31st March 07 क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस चेक डू यू हैव एनी क्रिकेट टूर्नामेंट फंड जैसा कुछ दिख रहा है आपको What do you see over there? You see receipts from cricket tournament. Receipts is last year ma hoy sake, current year ma receipt side par hoy sake. Anywhere you will find. Do you find any cricket fund or cricket tournament fund, anything like that? So that means here the sports club is organizing tournaments every year. The sports club is organizing tournaments every year. Fund nahi hai matlab har saal aa raha hai. So receipts will go to income. And expense will go to expense. Is it clear? So cricket tournament expense would be expense. Printing and stationery expense. Please answer first. Expense. Salaries and honorarium expense. Repairs to building, newspaper and periodicals expense. Advertisement expense. Insurance expense. Investments asset. Closing cash bank current year asset. Opening cash bank, last year asset, you can verify it on top. You will find it in the last year's balance sheet asset. Can you see that? Last year's balance sheet asset, cash and bank, 4,200 and 6,300. Subscriptions, एक ही subscription दिया तो फिलहाल किधर डाल देने का income और एक ही दिया है मतलब is it? But generally year wise कभी-कभी देता है ना? Last year, current year, next year. ये अशुद्ध है, ये मिलावटी है, तो पूरा का पूरा मिलावटी जाएगा आपका इनकम में, बराबर है? Entire subscription will go to income, and then all the adjustments you need to do, right? Now, entrance fees they have given revenue. Revenue म्हणजे receipt from cricket tournament is income. Interest on bank account is also income. All of you clear with receipt payment account? So repairs to building will add to building. No, beta. Repairs is expense. Every year hota hai. Recurring expense. Repairs, maintenance, it is expense. If it is construction of building, then you add to building. Then it is asset. Right? What will you do? Repairs to furniture? Expense. Right? What will you do? Repairs to, say, library building or repairs to ambulance, repairs and maintenance of ambulance. That is all the expense. The same way it is repairs to buildings, regular revenue nature का expense every year. Okay? Construction दिया. Sorry. Sir, purchase to building वो asset है. Purchase to building भी asset.
अच्छा गाइस, ये कॉमन सिली मिस्टेक हो जाता है काफी लोग से, याद रखना। रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एक्सपेंस। हर साल होने वाला रिपेयर है, थोड़ा बहुत मरम्मत। रिपेयर फंड है तो रिपेयर फंड से, बिल्डिंग फंड है तो भी रिपेयर्स माइनस नहीं करना, हैवी रिपेयर्स करना। हैवी रिपेयर मतलब डिफर्ड रेवेन्यू, वो नहीं है। तो रिपेयर्स हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर साल होने वाला रिपेयर। ये रिपेयर कौन सा है? हर साल होने, तो हर साल होने वाला है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। नहीं, ये वाला नहीं। हैवी रिपेयर्स होता है ना तो कर, हैवी रिपेयर मतलब 3-4 साल के हैवी रिपेयर्स, रेनोवेशन का रिपेयर्स ना माइनस कर, ये वाला है। नॉर्मल रिपेयर्स ऑलवेज एक्सपेंस, नॉर्मल हो, तुमको नॉर्मल ही है तो रिपेयर्स कभी भी दिखा तो याद रखना, इट इज ऑलवेज एक्सपेंस। रिपेयर्स, मेंटेनेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, डू नॉट ऐड टू बिल्डिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन दिया या परचेज ऑफ बिल्डिंग दिया तो ऐड करने का, रिपेयर्स इज नॉर्मल एक्सपेंस। यस, टेल 1 सेकेंड, रिपीट। डोनेशन बिल्डिंग रिपेयर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिपेयर ऐसा, तो बिल्डिंग रिपेयर इज रेवेन्यू, तो एक्सपेंस के लिए आया हुआ डोनेशन ही इनकम, इनकम वो वाला डोनेशन इनकम। जो भी खर्चे के लिए आ रहा है ना, एक्सपेंसेस के लिए, वो सब इनकम। एसेट के लिए आ रहा है वो लाइव, या फिर फंड दिया है तो लाइव। ओके, सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है क्या? तेरे में है कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम? सर मुझे कुछ पूछना है सर, 1 मिनट। हाँ बोल बोल। सर मेरे को उधर टेक्स्ट बुक, सर मेरी टेक्स्ट बुक है क्या उधर भी वो क्लास की? सॉरी, मेरी टेक्स्ट बुक है क्या सर उधर क्लास की? हाँ पढ़िए ये पढ़े यार, इधर लेके रख के जाते हो, भूल जाते हो। ये किसका है? ये किसका है? एक मोक्ष का है। ये किसका है? और ये नोटबुक किसका है? और भी एक है, ये यशराज का है। हाँ यशराज, ये महेश बोला क्या था? चलो ऑडिबल, बाकी लोग अभी आ रहे हैं, आवाज क्लियर? हेलो, इज दिस प्रॉपर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, It's a little bit low. सॉरी, It's little bit lower still. लिटिल बिट लो। एक कट के आ रहा है। हाँ सर, पीछे से भी बहुत डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस आ रहा है तेरा। क्या है नाम, क्या है? क्या है? अरे मेरा वाला है वो बराबर चलता है, मैं आज भूल गया एक्चुअली, इसके लिए। क्या है नाम, क्या? हाँ है, मेरा नाम होगा। हाँ होगा तो है नहीं ना। अरे सर के हाथ में ये सब कुछ। तेरा बंद कर देना। अरे भाई कितना, तेरा बंद कर देना। अरे उससे कैसे कनेक्ट होएगा सर? ओप्पो रेनो तू? अरे फोन कैसे हो गया? अबे सुन, एयरबड्स प्लस। हाँ क्या कितना टका बैठे? 50%। आराम। चलो ऑडिबल नाउ? हेलो, Yeah, sir, it's audible. बेटर नाउ? Yeah, way better. वे बेटर।
चलो let's continue. Receipt payment, all of you are clear. Repairs are always your expenses. Sorted. Now, last year's balance sheet you check. पहले last year का balance sheet check करो और वहां से adjustment ढूंढो. Building कहाँ जाएगा? Last year asset से current year asset. Furniture last year asset से current year asset. Entrance fees receivable. कौन सा receivable है ये? लेस फ्रॉम करंट ईयर्स इनकम. याद आया क्यों? क्योंकि ये साल मिला होगा. जो भी रिसीवेबल होता है लास्ट ईयर वो कभी मिलता है? ये साल मिला, तो ये साल में से माइनस. एक इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट वो दिया हुआ है और एक इफेक्ट लेस फ्रॉम एंट्रेंस फी. समझा सबको? सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल 800, ये भी क्या होगा? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये साल मिला होगा. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस. स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट. कैश बैंक लास्ट ईयर एसेट, एक ही इफेक्ट है. कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरीज लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? ये साल में ऐड की माइनस? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये साल भरा होगा, तो क्या करने का? माइनस. वो ऐड बोलता है, माइनस करना है. माइनस फ्रॉम सैलरी. अभी अभी क्या ना आपने? माइनस सब्सक्रिप्शन, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस. वो क्या था? लास्ट ईयर का रिसीवेबल इनकम था, तो ये साल मिला हो तो रिसीट के अंदर पड़ा होगा, इसके लिए माइनस. वैसे ही ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की है, ये कब पे की होगी? ये साल पे की होगी. तो ये साल जो पेड सैलरी उसके अंदर पड़ी हुई है उधर से हटा दो. ये साल का एक्सपेंस नहीं है. कौन से साल का एक्सपेंस है वो? लास्ट ईयर का एक्सपेंस. समझ में आया? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस फ्रॉम सैलरी. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग हाँ देखो एकदम नीचे देखो वो दोस्त एस्ट्रिक करके दिया हुआ है. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑफ द ईयर 06 वेर स्टिल पेएबल. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑफ द ईयर 06 वेर स्टिल पेएबल. दिखा नीचे दिया हुआ है. पिछले साल भी लायबिलिटी था और ये साल भी. विल यू डू एनीथिंग टू प्रिंटिंग? विल यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंटिंग? प्रिंटिंग से सब्ट्रैक्ट करने का? नहीं करने का. क्यों? ये साल पे नहीं किया. विल यू एड इट टू प्रिंटिंग? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट करंट ईयर्स एक्सपेंस. यू आर नॉट सपोज टू एड ऑल्सो. इज दिस क्लियर? सो ये क्या है? जैसे सब्सक्रिप्शन में होता था मालूम है, स्टिल इन अरियर. लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है. वैसे ही आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लास्ट ईयर भी लायबिलिटी था, ये साल भी. समझ में आई बात? प्रिंटिंग में से माइनस करने का कि नहीं करने का? कि नहीं माइनस करने. माइनस कब करने का? जब कुछ दिया ना हो. नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हो तो चुपचाप माइनस कर दे. जैसे सैलरी माइनस की वैसे प्रिंटिंग भी आप क्या करते? माइनस करते. आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑफ लास्ट ईयर, दोनों का मतलब समझना है आपको? दोनों का ट्रीटमेंट अलग है. मेरे को बोलो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैलरी. लेकिन लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग क्या करोगे आप? करंट ईयर लाइव. इसको प्रिंटिंग से सब्ट्रैक्ट क्यों? अभी भी देना. बात समझ आई? सबको आई? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हाँ एग्जैक्टली. ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो प्रिंटिंग से सब्ट्रैक्ट. मतलब अज्यूम करने का ये साल पे कर दिया. समझ में आई बात? घर वालों को समझा? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लेस फ्रॉम सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग इज करंट ईयर लायबिलिटी, क्योंकि अभी भी देना बाकी है. अतः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है आपको उधर लास्ट ईयर का 23,300. अब ये है ना, प्रैक्टिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता ही है. सैडली आपको थियरी में 2-3 सब में दिखेगा, नहीं तो प्रैक्टिकली आप कोई भी एनपीओ का अकाउंट उठा के देखोगे ना, आपको क्या दिखेगा? सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कैपिटल फंड अलग दिखेगा और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग दिखेगा. ऐसा क्यों? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फंड. जैसे रिजर्व होता है, व्हाट डू यू हैव इन रिजर्व्स? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, राइट? प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं ना रिजर्व में. नॉर्मली आप प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हो, कभी कभी आपको प्रॉफिट अलग से दिखाने तो आप रिजर्व में दिखाते हो. तो ऑर्गेनाइजेशन भी यही करता है. क्या करता है?
कैपिटल फंड अलग दिखाता है, और हर साल जो सरप्लस डेफिसिट होता है ना आपका, वो अलग दिखाता है। वो कौन से अकाउंट में दिखाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जो दिख रहा है ना आपको, नो सी, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये अभी तक का जमा हुआ सरप्लस। नॉर्मली आप सरप्लस क्या करते हो? कैपिटल फंड में ऐड कर। यहां पर उसने ऐड नहीं किया, यहाँ पे उसने अलग से बताया हुआ। कौन से अकाउंट में बताया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अभी तक का पिछले 7, 8, 9 साल, जितने साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसका कंबाइंड सरप्लस इज 23,300। ओके, अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, सम में कैसे करने का? कैपिटल फंड आप क्या करते हो? लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी, वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी, वैसे का वैसा लेके आए। फिर ये साल जो भी सरप्लस होगा ना, वो कैपिटल फंड में ऐड नहीं करने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड। और जो भी डेफिसिट होगा ना, वो कैपिटल फंड में से माइनस नहीं करने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से माइनस करने का। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि कैपिटल फंड अलग दिखे और हर साल का सरप्लस डेफिसिट अलग दिखे। क्यों ऐसा? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ, तो उसको पता चले कि भैया एंट्रेंस फीस, डोनेशन से कितना पैसा आया और हर साल कमानी से कितना पैसा आया, दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। बात समझ आई? नॉर्मली आप क्या करते हो? हर साल का सरप्लस डेफिसिट ऐड या लेस फ्रॉम कैपिटल। लेकिन जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा, जैसे कि ये सम क्या दिया है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका एक ही यूज है। क्या यूज है? इस साल का सरप्लस यू विल ऐड टू इनकम एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ कैपिटल फंड, एंड इस साल का डेफिसिट यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ कैपिटल फंड। या क्या कोई साइड पर आपके लिए लायबिलिटी पे, मतलब रिजर्व, प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे इट बैक, लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी देना। लायबिलिटी साइड पे मतलब सरप्लस, एसेट साइड पे मतलब डेफिसिट। समझ में आया? बाय चांस एसेट में आ गया, एसेट में होता नहीं है जनरली, आया तो एसेट का एसेट में लेके आया नीचे, और सरप्लस है तो क्या करोगे? माइनस, और डेफिसिट है तो ऐड। जैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस होता था आपका, अक्यूमुलेटेड लॉस एसेट में दिखता था, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है तो एसेट में, मतलब वो डेफिसिट है, पिछले सालों का जमा हुआ डेफिसिट। समझ आई बात? वंस अगेन मेरे को बताओ, कैपिटल फंड और इनकम एक्सपेंडिचर अलग अलग देने का मतलब क्या है? अलग अलग देने का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि कैपिटल फंड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? खाली कैपिटल फंड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो पैसा पड़ा। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या पड़ा हुआ है? कमाई, हर साल की सरप्लस या डेफिसिट एडजस्ट करके ली गई। तो कैसे लेके आओगे? लास्ट ईयर का कैपिटल फंड ये साल का ओपनिंग, लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर ये साल का। क्या यूज है इनकम एक्सपेंडिचर का? इस साल क्या करने का उसमें? प्रॉफिट या लॉस, जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसको क्या करने का, किस में ऐड करने का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेफिसिट है तो माइनस, सरप्लस है तो ऐड। विल यू शो इट अंडर कैपिटल फंड? समझ में आई बात? हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये अकाउंट अलग से दिखाता है और है। हमारा ही बुक्स में सब सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है, प्रैक्टिकली कभी कैपिटल फंड में ऐड होता ही। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही अलग से अपना सरप्लस और डेफिसिट दिखाते हैं। सर अगर डेफिसिट ये इनकम और एक्सपेंडिचर से ज्यादा हुआ तो नेगेटिव करके डाल देने का, पूरा नील कर देने का। समझो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर 23,300 है और डेफिसिट हो गया 30,000, तो 23,300 माइनस 23,300 जीरो कर दो, और एसेट साइड पे दिखा दो 7,000, 6,007 जो भी एक्स्ट्रा है। समझा? So is it possible that first वो लोग अलग अलग से दिखाते हैं, बाद में they decide that they want to merge it? No, So they will never ever merge it. जब अलग दिया तो अलग ही रखना, don't merge. Do not add income expenditure to capital fund, never. अलग दिया है तो अलग ही रखो, और प्रैक्टिकली तुमको पता है ना अलग ही होता है। सैडली तुमको थियरी में 1-2 समय अलग दिया, तो अलग दिया तो अलग ही रखो, do not add. Okay? मेरे को बोलो, डोनेशन बीइंग कैपिटलाइज तो किस में ऐड करने का? कैपिटल फंड। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, कैपिटल फंड। खाली सरप्लस डेफिसिट
अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, समझ आई बात? उसका टुकड़ा ही है, पप्पा को अलग कर दिया, बेटे को अलग कर, बराबर है? पप्पा कैपिटल फंड है, बेटा सरप्लस और डेफिसिट, हर साल का इनकम एक्सपेंस अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझा सबको? खाली सरप्लस और डेफिसिट उसमें एडलेस करना है, बाकी सब एडजस्टमेंट कैपिटल फंड में करना जाएगा। किधर? लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी। अभी नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये कौन सी है? करंट ईयर वाली है। सब्सक्रिप्शन ऑफ द अमाउंट 800 वर रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 07। कौन सा रिसीवेबल? क्या करोगे? करंट ईयर रिसीवेबल, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। करंट ईयर रिसीवेबल एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, समझा ना? ये सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 एंड इंटरेस्ट ऑफ 300 वर रिसीव्ड इन एडवांस। कौन सा रिसीव्ड इन एडवांस है? करंट ईयर, तो लेस एंड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरीज, इंश्योरेंस, क्रिकेट टूर्नामेंट, तीनों क्या करने का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तीनों करंट ईयर, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑफ ईयर 06 वर स्टिल पेएबल, ये समझ आया? लास्ट ईयर का लायबिलिटी कम्स टू करंट ईयर लायबिलिटी। डॉट्स दे दो। आराम से क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस 1 डॉट, सैलरी 2 डॉट, प्रिंटिंग 1, इंश्योरेंस 1, सब्सक्रिप्शंस 2, 3 dots on subscription. Why 3? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर प्री रिसीव है। 3 डॉट सबसे। एंट्रेंस फीस पे अरे आउटस्टैंडिंग भी है, प्री रिसीव करंट ईयर नीचे दिया है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड इज 200, आउटस्टैंडिंग इज 8। सेम, यस, प्रिंटिंग जस्ट 1, दैट वन ओनली। लास्ट ईयर का, सॉरी इनमें प्रिंटिंग पे डॉट ही नहीं है, सॉरी, प्रिंटिंग पे डॉट ही नहीं। प्रिंटिंग पे क्यों डॉट नहीं है? क्योंकि लास्ट ईयर का लायबिलिटी करंट ईयर लायबिलिटी में जाएगा, माइनस माइनस कुछ करना ही नहीं है। हेलो, समझा आपको? प्रिंटिंग पे डॉट ही नहीं है। इंश्योरेंस पे देखो, वापस बोलता हूँ, डॉट्स देख लो जरा सब लोग। बोला देखो, टोटल डॉट्स सुन लो, लिसन, डॉट्स देखो। सब्सक्रिप्शन 3 डॉट, सब्सक्रिप्शन 3 डॉट, एंट्रेंस फीस 2 डॉट। लिसन, सब्सक्रिप्शन 3 डॉट, एंट्रेंस फीस 2 डॉट, क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस 1, सैलरीज 2, इंश्योरेंस 1। चलो स्टार्ट करो। लास्ट ईयर का इस ईयर का सब्ट्रैक्ट होता है, ये साल का प्रीवियस सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1000 हो गया, उसको 17,000 प्लस 800 800 नेक्स्ट ईयर का जो कितने वाला तो मिल गया फ्री मोबाइल माइनस होगा तो करंट है आउटस्टैंडिंग प्लस मेरे को भी ऐसे ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Starting with
क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस, व्हाट इज अ डॉट? आउटस्टैंडिंग 250। क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एड, बराबर है। प्रिंटिंग पे है कुछ? व्हाई नॉट? वेरी गुड, नो डॉट। सैलरी पे डॉट है क्या? सैलरी हाउ मेनी डॉट? क्या बोल रहे हैं? एंट्रेंस फीस रिसीवेबल आज चल क्या वो माइनस और करंट ईयर और करंट ईयर का फिर रिसीव चलता है एंट्रेंस फीस पे, लेकिन 2 ही डॉट है ना। 3 एंट्रेंस फीस 2 ही है, सब्सक्रिप्शन पे 3 है, एंट्रेंस फीस पे 2 है ना। एक ही है दो तो 2 है। लास्ट लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, करंट ईयर का प्री रिसीव है, 2 है इसलिए। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे को बोलो, करंट ईयर क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड की लेस? लास्ट ईयर का रिसीवेबल और नेक्स्ट ईयर का और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करना है? ऐड की लेस ऐड कितना है? नीचे मिलेगा 100 रुपया है ना। अमाउंट ध्यान से देखना, करंट ईयर वाले नीचे मिलेंगे आपको, हेलो, लास्ट ईयर वाले ऊपर, करंट ईयर वाले नीचे। लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर कितना है? 400। Repairs to building is expense. Newspaper and periodicals. Advertising expense. Insurance. What is the dot on insurance? कौन सा आउटस्टैंडिंग? Investments are asset. Cash bank is asset. घर वाले क्लियर है ये वाला? Any doubts? घर वाले? Opening cash and bank will go to last year asset. Then subscription, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन अभी भी सब्सक्रिप्शन कितना दिया है देखो, 18, उस पे 3 डॉट है। नंबर 1 क्या करोगे बोलो? कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो आप। क्या 3 डॉट्स है इस पे? एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 07 कितना है? 800। कहाँ मिला? नीचे एडजस्टमेंट दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर नीचे एडजस्टमेंट 800 रुपया। फिर दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर क्या करोगे आप? हेलो, लास्ट ईयर का भी आई थिंक 800 ही है ना, सेम ही है। और लेस प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, ये भी नीचे मिलेगा एडजस्टमेंट में। कितना है? सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड 200 है, तो सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम विल बी 17,800। प्लीज चेक, डिड यू गेट 17,800? All of you clear with subscriptions? Then you have entrance fees. रेवेन्यू दिया हुआ है तो इनकम में डालना है एंट्रेंस फीस।
that was 4,000. How many dots on entrance fees check? What are the two dots? Pre-received this year, pre-received entrance fees. किधर मिलेगा pre-received of current year? नीचे कितना है वो? 300. ये माइनस और भी एक है, क्या है? हाँ, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, वो भी माइनस करना है 200, दोनों माइनस करना है, तो आउटर कॉलम 3005. किधर भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, खाली एसेट्स पे एसपीडी, सेल परचेज डेट. ठीक है. उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम क्रिकेट टूर्नामेंट, that is income. Interest on bank account, that is income. फिर रिसीट पेमेंट के बाद जाना है आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट, वहां से आइटम्स लेके आने. तो पहला है बिल्डिंग. बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट. Is there any dot on building? कुछ है? सेल परचेज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कुछ है? No. Then फर्नीचर भी सेम, लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट है कुछ, सेल परचेज डेप्री ऑन फर्नीचर. एंट्रेंस फी रिसीवेबल लास्ट ईयर का था, हमने माइनस कर दिया है, ये देखो ये रहा, माइनस कर दिया. सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल ये रहा, माइनस कर दी. स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर एसेट में. स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, एनी डॉट? कुछ है? सेल परचेज डेप्री कुछ. कैश बैंक लिखा हुआ है. कैपिटल फंड लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर में. कैपिटल फंड देखो, इधर मैं कैपिटल फंड सीधा आउटर कॉलम में दिखा रहा हूं, ऐसा क्यों? We will add surplus or subtract deficit from which account? Income and expenditure account, not from capital fund. You got it? So ये सीधा सीधा outer column. देखा इंदिरा जी? Then outstanding salary of last year ये हो चुका है माइनस, कहाँ गया? ये रहा. Outstanding printing of last year, will you subtract from printing? No. Liability में डालना है outstanding printing. Yes. Sir, I don't understand why you wrote capital fund in the outer column. Normally we write it in the inner column and we add surplus, right? Or deficit subtract करते हैं ना? Yes. But in this sum, where you are supposed to add surplus or subtract deficit? I told you in the beginning. Income and expenditure account से करना है ना? But sir, we haven't given that in the question, right? We are given ना? ऊपर पढ़ो. Liability side are given, income and expenditure. So the organization is showing both the things separately. Capital fund अलग, income and expenditure अलग. जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अलग दिखेगा, तब जो भी सरप्लस डेफिसिट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट इन कैपिटल. Okay, thank you, sir. वेलकम. तो ये कैपिटल फंड अलग, सैलरी प्रिंटिंग हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी के नीचे अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग से, ये इनर कॉलम. This is separately, income and expenditure account separately, inner column. Can you see this? Capital fund alag, income expenditure alag. Now you come to current year's adjustments. Current year receivable क्या करने का? Add कर दिया है. What is the second effect? क्या liability? 1000 से होने का outstanding subscription liability. Outstanding subscription asset. पहला लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है outstanding subscription asset, receivable, liability. Outstanding generally है. अरे दोनों के लिए यूज करता है ना, थोड़ा अलर्ट रहो. ये चीज और वो प्री रिसीव्ड के जगह प्रीपेड इनकम, ये दो चीज निकलता ही नहीं है स्टूडेंट लोग का दिमाग. देन नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन 200 रिसीव्ड इन एडवांस. वन इफेक्ट इज हियर, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट?
इधर जाएगा ये 200 का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 200, देन एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड एंट्रेंस ये रहा, माइनस किया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ, liability. Why did I subtract pre-received? क्योंकि वो लास्ट ईयर का इनकम ये साल Pre-received. जल्दी मिल गया. नेक्स्ट ईयर का इनकम है, ये साल में से माइनस हो जाए. बोलो कोई हो? जो आउटस्टँडिंग सॅलरी लास्ट इयर नी घेतली होती 400 હતી, આ વર્ષે તે જે સેલરી પે કરી છે ને એમાં ઇન્ક્લુડેડ હશે. સેલરી 1600 પે કરી છે ને એમાં 400 પે કરી જ નાખી હશે, ઇન્ક્લુડેડ જ હશે. તો 1600 અંદર પડી છે 400, એને કાઢી નાખ્યું 400. આ વર્ષની જે છે પેએબલ છે, તો હજી પૈસા આપ્યા નથી, બટ એક્સપેન્સ બિલોંગ્સ ટુ ધીસ યર. સો પૈસા આપવાના બાકી છે તો લાયબિલિટી. Got it? Printing को एवी रीजन आ गયું. Printing we did not subtract. Why printing we did not subtract? Still payable. Last year નું હજી પણ દેવાનું બાકી છે. પે કર્યું હોત તો you would have subtracted from. Now entrance fees received advance हो गया. Outstanding expense, salary, current year outstanding. एक इफेक्ट ऐड. What is the second effect? Liability of करंट ईयर 100 रुपया. और क्या है बाजू में देखो, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, एक इफेक्ट ऐड, ये रहा, ऐड टू इंश्योरेंस. सेकंड इफेक्ट हाँ लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस, वन इफेक्ट इज ऐड टू एक्सपेंस. सेकंड इफेक्ट हेलो लायबिलिटी. बराबर है. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग आर स्टिल पेएबल. लास्ट ईयर भी देना बाकी था, ये साल भी देना. ये रहा, लेके आया लायबिलिटी, कुछ माइनस नहीं किया. बोलो मेरे को टोटल 36 सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट सरप्लस कितने का? 14530 सॉरी 550 किसमें ऐड करोगे ये? टोटल टैलीज ऑन 70,000. check. So, do we not have to write last year's outstanding subscription on the liability side? अरे यार सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो लास्ट ईयर का रिसीवेबल है. लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, समझा? तो लास्ट ईयर का रिसीवेबल यू वुड हैव रिसीव्ड इट इन दिस ईयर. So one effect is last year asset and second effect is less from subscription. Okay. And current year outstanding subscription is current year receivable. Na? That is add. Income belongs to this year. And assets. Here asset. Milna baki. Yes, sir. Yes. It cannot be liability. It is income received. Next one. Record. एक साल साथ 2 साल बैठना नहीं समझता. Next sum number. Sum number 21. Again, if you check in sum number 21, balance sheet of Samat Sports Club Solapur. मुझे बताओ, what is your current year? 2011. Current year is 2010-11. બરાબર હે? અને લાસ્ટ યર ની બેલેન્સ શીટ બનાવીને આપેલી છે. Can you see that? You have been given last year's balance sheet. Are you supposed to make it again? No. Come to the payment side. Start with payment side. एकदम इंपॉर्टेंट आइटम है यहाँ पे.
स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कैन यू सी दैट? मुझे बताओ इस सब में स्पोर्ट्स मटेरियल एक खतरनाक आइटम है, दोनों रोल प्ले कर देता है, कभी एक्सपेंस होता है, कभी एसेट होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज तो क्या हुआ, एक्सपेंस है, स्टेशनरी परचेज तो एक्सपेंसिव लास्ट ईयर में Expense. स्टॉक दिया हुआ है। यू हैव टू चेक फॉर सेल या डेप्री। डू यू हैव सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल? डू यू हैव डेप्रीसिएशन एनीवेयर गिवन? ये दोनों आइटम नहीं है, मतलब वो एक्सपेंस है, मतलब वो एक्सपेंस है। बात समझ आई? सेल किस पे होता है? एसेट पे होता है ना। एक्सपेंस बेचते हो? नहीं बेचते ना, एसेट बेचते हो, राइट? तो सेल दिया है या डेप्रीसिएशन दिया है, सेल दिया है या तो ही एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस। व्हाट आर यू आस्किंग? हाँ तो नहीं दिया है ना, मतलब एक्सपेंसिव, मतलब यू आर यूजिंग इट ईयर ऑन पैसा। ओके, सो स्टेशनरी कैसे आप करते हो? इधर तो दूसरा हिंट भी आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ। स्टॉक भी किस पे होता है? एक्सपेंस पे होता है। तो कैसा प्रेजेंट करने का मालूम है आपको? परचेजेस एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मींस प्रीपेड, स्टॉक मींस प्रीपेड, दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन एक्सपेंस, नॉट ऑन एसेट्स पे पॉसिबल। तो डबल हिंट है ये सब में, सेल डेप्री भी नहीं दिया, स्टॉक्स भी दिया। गॉट इट? स्विच को समझा? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज इज एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस रेंट, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैश बैंक, मारेगा एक्सपेंस। एसेट है वो। ओपनिंग कैश बैंक, लास्ट ईयर एसेट दिख रहा है ऊपर। सब्सक्रिप्शन एकमात्र सब्सक्रिप्शन है, मतलब अशुद्ध मिलावटी, सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल किधर डाल दो उसको? इनकम। एडमिशन फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है, पढ़ो, दिया है पॉइंट नंबर 2। एडमिशन फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। तो काय करायचा? एड टू कैपिटल। कुछ इन्फो नहीं दिया होता तो शाबाश, गिव दिस मैन अ चॉकलेट। व्हाई इनकम? डोनेशन और एडमिशन फीस के बारे में इन्फो नहीं होता तो इनकम में डालते हैं। ड्यू टू दैट अजम्पशन। सैड जी, सैड जी याद है? याद है सैड जी? That is the income. That's a revenue. SAT is a short form for that. Subscription, admission fee, donation and grant. Sundry receipts, income, interest. देखो एकदम ही important item में डिस्कस कर रहा हूँ। सब लोग स्क्रीन पे देखो, बोर्ड पे देखो। ऊपर देखिए। और भी कुछ है? करो, डिस्कस करो। Very important item. All of you look at the screen. All of you look at the board. Interest on investment of building fund. Interest on investment of Income. क्या करोगे? Add to building fund. Add to building fund. क्यों? फंड है, फंड। फंड का जो भी इनकम होगा क्या करते हो आप? Add to fund. फंड रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फंड। तो ये फंड की इनकम है। जो बिल्डिंग फंड मतलब क्या? आपने मेंबर से पैसा लिया तो उससे क्या बना होगा? बिल्डिंग फंड बना होगा। बिल्डिंग फंड भी आपको दिख रहा है ऊपर, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। कैन यू सी बिल्डिंग फंड? कहाँ दिख रहा है? लास्ट ईयर लाइबिलिटी। उसको कहां से कहां लेके आओगे आप? करंट ईयर लाइबिलिटी। और ये इंटरेस्ट क्या करोगे? उसमें ऐड कर दोगे। इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला चलो हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे, हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे, पैसा लाओ। तो सब मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया। कितना कंट्रीब्यूट किया मालूम है आपको? 2.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया। ऊपर दिख रहा है आपको? अच्छा, 2.5 लाख कंट्रीब्यूट किया तो एसेट साइड रोकड़ा भी आया होगा। वो रोकड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने बोला अभी टाइम है, 2 साल लगेगा बिल्डिंग बनने, तो अभी उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, कहीं तो गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी कुछ तो ले लिया होगा। इसके लिए वहां पे दिख रहा है आपको एसेट साइड पे, यू आर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट।
हाँ, तो जो फंड का पैसा है ना, फिलहाल बिल्डिंग बनाया नहीं है, उसको किधर रखा हुआ है आपने? गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ। फ्यूचर में जब भी बिल्डिंग बनानी होगी तब आप क्या करोगे? ये इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? बेच दोगे। जो पैसे आएंगे उससे आप क्या करोगे? बिल्डिंग बना। तो इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगी? फ्यूचर में बिल्डिंग आ जाए। क्या आ जाएगी? बिल्डिंग आ जाएगी। अभी तक बिल्डिंग बनी, फंड इकट्ठा हो रहा है। ये जो इन्वेस्ट किया ना, इस पे ब्याज मिला है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किया ना आपने लास्ट ईयर 2.5 लाख रुपए, रिसीवेबल है तो इन्वेस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड है तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? कैश टू इंटरेस्ट। कैश टू इंटरेस्ट होती है ना। नॉर्मली ये इंटरेस्ट किधर जाता है? इंटरेस्ट टू पीएनएल या फिर इंटरेस्ट टू इनकम एंड, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हो ना बाय इंटरेस्ट। तो ये वाला इंटरेस्ट है ना, ये किस पे मिला है? बिल्डिंग फंड के इन्वेस्टमेंट में मिला है। मतलब ये हर साल मिलने वाला 1-2 साल के लिए रहेगा, फिर जैसे बिल्डिंग बन जाएगी इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे, फिर ये घड़ी घड़ी आने वाला। तो इसको आप इनकम में नहीं डालोगे, इसको आप किधर ऐड कर दोगे? बिल्डिंग फंड में। ये ट्रांसफर हो जाएगा बिल्डिंग फंड को। तो आपकी एंट्री क्या बनी? कैश टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू कैश अकाउंट में दिख रहा है टू इंटरेस्ट, वो हो चुका है। अपने को भी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है, किधर ट्रांसफर करोगे? बिल्डिंग, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मल इंटरेस्ट होता है ना, नॉर्मल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब इनकम में जाएगा क्योंकि वो हर साल मिलने वाला है। लेकिन ये कौन सा इंटरेस्ट है? पढ़ो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन एरा गैरा इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो फंड रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया तो आप क्या करोगे? ऐड टू फंड। फाइनल अकाउंट में करते थे ना प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो ऐड टू प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, राइट? क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं, एम्प्लॉय को देना बाकी है। वैसे ही ये भी सिमिलर है, इसमें किसी को देना नहीं है, इसमें टेम्पररी है, घड़ी घड़ी आने वाला है। इसके लिए बिल्डिंग फंड। समझ आई बात? सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत क्रूशियल आइटम है, बोर्ड्स में पूछा जा चुका। नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे दिखाओगे आप? इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट कोई भी नॉर्मल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, सब इनकम, क्योंकि वो इंटरेस्ट हर साल मिलेंगे, दे आर ऑल रेवेन्यू रिसीट्स। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन क्या करने का? ऐड टू बिल्डिंग फंड, ऐड टू बिल्डिंग, उसको इनकम में नहीं दिखाने का, किधर ऐड करने का? बिल्डिंग फंड। इधर कैश आएगा और इधर बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाए। समझ आया? क्योंकि वो घड़ी घड़ी मिलने वाला। नॉर्मली क्या होता है? इधर कैश आता है और इधर इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि वो हर साल मिलेगा। जो हर साल मिलने वाला नहीं होता, वो इधर कैश आता है और इधर इंटरेस्ट आता है, बिल्डिंग फंड में आता है, लाइबिलिटी। ओके, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लाइब्रेरी फंड इन्वेस्टमेंट दिया तो ऐड टू लाइब्रेरी फंड, इंटरेस्ट ऑन क्रिकेट फंड इन्वेस्टमेंट दिया तो ऐड टू क्रिकेट फंड, इंटरेस्ट ऑन समझो आपको स्कूल प्लेग्राउंड फंड इन्वेस्टमेंट दिया तो ऐड टू प्लेग्राउंड फंड। सर अगर ये फंड में अगर हिडन इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी फंड में होगा, तो इन्वेस्टमेंट फंड पे हिडन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई परसेंटेज दिया है, लोन थोड़ी, आप इंटरेस्ट वगैरह कुछ देते नहीं। मतलब समझो परसेंटेज दिया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स पे दिया, हाँ वो भी फंड में होगा, फंड में अगर तो हाफ मिला है रिसीवेबल, हाँ हाँ, ऐड टू इंटरेस्ट कर दो ना आप यहाँ पे, ऐड टू इंटरेस्ट और एसेट, उसकी जगह ऐड टू फंड एंड रिसीवेबल, ऐड टू फंड एंड एसेट। इनकम में ऐड करते हो ना आप, इनकम किधर दिखानी है? बिल्डिंग फंड, ऐड टू बिल्डिंग फंड एंड इधर इंटरेस्ट होता तो इसमें ऐड करते हैं और एसेट में दिखाते। ये इंटरेस्ट की जगह हम लोग कहाँ ऐड करना है? बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, लायबिलिटी। तो ऐड टू बिल्डिंग फंड एंड ऐड टू इन्वेस्टमेंट एसेट, अगर हिडन होता, बराबर। देख, तुम्हारा इधर बिल्डिंग फंड है समझो 2,50,000 का, इधर तुम्हारा बिल्डिंग फंड है 250 का, बिल्डिंग फंड है 2,50,000 और इधर है तुम्हारा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और इसमें दिया है 10%। तुम क्या करोगे? कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, 25,000 रुपया चेक करोगे कुछ मिला है क्या? मिला है मतलब रिसीट में मिला है क्या? मतलब कुछ होगा तो ठीक है, नहीं मिला है तो पूरा का पूरा रिसीवेबल है,
पूरा का पूरा रिसीवेबल नॉर्मली आप क्या करते हो इनकम में एंड एसेट में, लेकिन ये इनकम घड़ी घड़ी आएगी तो इसको इनकम में दिखानी है, इसको क्या करनी है बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। ये इनकम यहाँ पे होती है तो इधर आ जाए ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25 और इधर एसेट में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 25। समझा? अगर समझो इस 25 में से 10 मिल चुका है तो रिसीट में दिखेगा ना 10, तो वो इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी इधर ऐड कर दिया होगा। 10-15 तो अभी कितना रिसीवेबल है 15, तो ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 15, ये हो जाएगा 275 और इधर सिर्फ 15 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 15। समझा? तो बाकी 10 किधर पड़ा हुआ है कैश में पड़ा, बाकी 10 कैश फॉर्म। उसको भी अगर 1-2 साल बिल्डिंग को बनाने में टाइम है तो उसको भी आप इन्वेस्ट करो, तो कैश जाएगा और इन्वेस्टमेंट आता है 10,000, कैश जाएगा और इन्वेस्टमेंट आता है। समझ में है? इन शॉर्ट एनी फंड, पहला तो एनी फंड, फंड इज अ टेम्पररी रिसीट और अ परमानेंट एवरी ईयर का रिसीट, टेम्पररी घड़ी घड़ी आने वाला। तो कोई भी फंड क्रिएट किया वो जाएगा किधर पहले तो लाइबिलिटी, कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग, और उससे रिलेटेड कोई इनकम है तो क्या करने का ऐड टू फंड। तब वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड होता है तो वो क्या करते ऐड टू बिल्डिंग फंड। वैसे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट वो भी क्या करने का ऐड टू बिल्डिंग। बात समझ आई? और कोई एक्सपेंस बिल्डिंग पे तो जनरली नहीं होता, टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस है, क्रिकेट फंड एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ तो क्या करने का उधर से माइनस। यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है, यू हैव ओनली इनकम, यू हैव ओनली income on that building fund invest that you add to building. Yeah. बिल्डिंग फंड इट इज इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे ऐड नहीं होगा। अरे वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो बताया कैश टू इंटरेस्ट मिल चुका है, रिसीवेबल वो एसेट है, रिसीवेबल एसेट है ना, वो ऐड होता है इन्वेस्टमेंट पे। इनकम जो मिल चुकी है आइदर वो तुम्हारी रेवेन्यू इनकम में जाएगी या बिल्डिंग फंड में ऐड होगी, लाइबिलिटी मिलनी बाकी है ना वो इन्वेस्टमेंट में ऐड होती है। इसी एसेट है ना इन्वेस्टमेंट, इनकम इनकम अलग है, एसेट अलग है। समझा? बढ़ो आगे बढ़ो, देखो अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड क्या करना है आपको ऐड टू बिल्डिंग ऐड टू बिल्डिंग फंड। याद रखना बोर्ड्स में भी आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग फंड का है नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम, फंड वाला ऐड टू फंड। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड इज एसेट्स, फर्नीचर एसेट, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट। बोथ ऑफ यू प्लीज डोंट टॉक। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कौन सा दिया हुआ है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम दिस ईयर का, क्या करने का इधर ऐड टू स्पोर्ट्स मटेरियल। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहां से कहां आएगा? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। कैश इन हैंड लास्ट ईयर एसेट एक ही बार है, खत्म। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, 6 साल के सब्सक्रिप्शन में से माइनस का। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये साल मिला होगा माइनस, बराबर है। देन नीचे भी वही दिया, देखो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर। कैन यू सी दैट? वही रिपीट करके दिया, 17,000 माइनस के। समझा? लेकिन उधर नीचे दिया होता है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 10,000 ऑफ प्रीवियस, और मतलब 7,000 एसेट में जाएगा और 10 माइनस है, जो रिसीव्ड है वो माइनस, जो अभी भी मिलना बाकी है वो asset। बराबर है। देन लाइबिलिटी कैपिटल फंड, लास्ट ईयर क्लोजिंग बिकम दिस ईयर का बिल्डिंग फंड। लास्ट ईयर लाइबिलिटी टू करंट ईयर, समझाइए लॉन्ग टर्म, ऑल फंड्स लास्ट ईयर टू करंट ईयर। देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर द ईयर 10-11, कौन सा प्री रिसीव्ड है ये?
लास्ट ईयर का प्री हाँ, लास्ट ईयर का प्रीवियस, मतलब लास्ट ईयर ये साल का पैसा मिला, ये साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड बट सर 14,400 है 4,300, ये साल आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का प्रीवियस में प्लस होगा 4,500 होगा, तो अलग अलग है। हाँ ऑब्वियसली 10,000 होत नाही, मतलब આ વર્ષે તને લાસ્ટ નું 10,000 મળ્યા છે લાસ્ટ, તો માઇનસ કેટલા કરવાના અહીંયાથી 10, હમણાં 17 કરીશ, પણ અગર 10 જ મળ્યા હોય તો 10 જ, કારણ કે 10 જ ઇન્ક્લુડેડ છે આના અંદર, જે ઇન્ક્લુડેડ છે એ જ માઇનસ કરવા, અને બાકી 7 હજી પણ મળવાના જશે કરંટ યર હશે. નો, बट वो कैसे you are not understanding, listen carefully. Subscription received in advance for the year 10-11, लास्ट ईयर दिख रहा है लाइबिलिटी में, उसका मतलब समझो पहले, उसका मतलब क्या है. लास्ट ईयर आपको इस साल का 4,500 मिला था पैसा, क्या आवाज है, ऑडिबल? हेलो, यस लास्ट ईयर मेरे को ये साल का 4,500 पैसा मिला, इनकम, तो 4,500 ऐड हो जाएगी, ये साल की इनकम है. अब नीचे पढ़ो क्या दिया एकदम लास्ट एडजस्टमेंट में, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 14,500 इज आउटस्टैंडिंग. ये कौन सा 14,500 है? करंट ईयर का मिलना. ये तो क्या करोगे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन है ऐसे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन है ऐसे, बात समझ आई? बट सर और उसके ऊपर दिया हुआ है 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, वो भी सब वो क्या है, लेस एंड लाइव, वो नेक्स्ट ईयर का अब भी है, समझा? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. सी 4,500 आपको पैसे यू लिसन, मैं क्या बोल रहा हूं, 4,500 का पैसा लास्ट ईयर मिल चुका है, इनकम ये साल की है. 14,500 का तो पैसा ही नहीं मिला है, इनकम ये सब इनकम ये साल के पैसा ही नहीं मिला है, तो हाउ इट कैन बी इंक्लूडेड? इज इट पॉसिबल? नो नो 4,500 का पैसा लास्ट ईयर, मिल चुका इनकम बिलोंग्स टू, और 14,500 का तो सारा पैसा ही नहीं मिला. लास्ट ईयर भी नहीं, ये साल भी नहीं, पैसा ही नहीं मिला है, ये साल का रिसीवेबल, समझना है? तो क्या करोगे, ये साल का रिसीवेबल ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, टोटल 4 एडजस्टमेंट, 4 डॉट है सब्सक्रिप्शन. देखो अभी नीचे आ जाओ वापस. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन हैंड ऑन 31st March 11 is 24,000. विच स्टॉक इज दैट? क्लोजिंग स्टॉक. क्या करोगे, इसमें तो प्रीपेड होगा ना, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, वही है. क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स. सॉर्टेड. एडमिशन फी, डोनेशन, कैपिटलाइजेशन हो गया. वापस पढ़ो सब्सक्रिप्शन, वापस पढ़ो सब लोग. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 17,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर. कुछ अलग है कि सेम है? क्या सेम है? ऊपर दिया था ना 17,000, वो मिला है, क्या करना है, माइनस, वापस करना है 17 दो बार, एक ही बार. लास्ट ईयर का रिसीवेबल ये साल मिला है, माइनस. सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट. आगे बढ़ो. 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज रिसीव्ड इन, क्या करोगे, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लाइबिलिटी, नेक्स्ट ईयर की इनकम है वो. उसके आगे बढ़ो. करंट ईयर 14,500 इज आउटस्टैंडिंग, ये क्या करोगे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट. तो हाउ मेनी एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन इन ऑल? सबको समझा? 4 एडजस्टमेंट्स. घर वाले समझ रहे हैं 4 एडजस्टमेंट्स? हेलो, यस सर 4 डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शन. मेरे को बताओ 1 सेकंड, व्हाट आर द 4 डॉट्स? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, प्लस ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, less from subscription and assets of last year. Current year pre-received, current year pre-received, subtract and liability. Last year pre-received, add to income. क्यों add समझा? पैसे लास्ट ईयर मिल चुके हैं, इनकम बिलोंग्स टू
ये सब में सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड। लास्ट ईयर का प्री रिसीव समझा, एड एंड लास्ट ईयर लाइव, ऑल फोर क्लियर। खुद को समझाओ ये साल की इनकम कैसे आई, खुद को नहीं समझाओगे ना, मेरा बोला हुआ रट्टा मारोगे तो भूल जाओ। खुद को समझाओ क्यों क्यों ऐड क्यों ले, क्यों एसेट क्यों लायबिलिटी, तो आएगा। बोलो एनी डाउट स्टिल? घर वाले इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल हो सकता है ना? ये क्या बताया तो सही, रिसीवेबल है तो ऐड टू फंड एंड ऐड टू इन्वेस्टमेंट 15, एसेट में ऐड टू इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी में भी Add ऐड to टू building. इंटरेस्ट। जो आप इधर इनकम में ऐड कर देते वो बिल्डिंग फंड, रिसीवेबल है तो, रिसीव्ड है तो खाली बिल्डिंग। हाँ बोलो। जो भी एंडाउमेंट फंड है उसका एंडाउमेंट फंड विल बी ऑन द लायबिलिटी और उसमें Liability. जो भी ऐड माइनस वो फंड पे होता है, बट उसके Fund पे। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट पे दिखेगा। इन्वेस्टमेंट एसेट में दिखेगा, और रिसीवेबल इंटरेस्ट है तो ही इन्वेस्टमेंट का, अदरवाइज सब रिसीव्ड इंटरेस्ट फंड्स पे। ट्राई करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, यू कैन चेक इट। सर बोलो। तो लास्ट ईयर का स्टॉक का मैं ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं? यस, ओपनिंग ही तो लिखना है। तेरा बैटरी लो आ रहा है, और किसी बात है क्या, बाय एनी चांस ब्लूटूथ? कितना टाइम लगता है, तेरा बैटरी कितना चलता है? 4-5 हफ्ता चलता है? चलेगा, बैटरी लो में भी आपका क्लास निकल जाएगा। निकल जाएगा पक्का ना? हेलो हेलो, ऑडिबल? पता चला बीच में नहीं होगा ना, तो ठीक है। सब्सक्रिप्शन पे $4, एडमिशन फी 1, डोनेशन 1, स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2, बराबर? बस 4 सब्सक्रिप्शन पे, 2 स्पोर्ट्स मटेरियल पे, 1 डोनेशन और 1 एडमिशन। ये बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान से करना। समझ स्पोर्ट्स क्लब। एक एक आइटम ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, आई एक्सप्लेन, बट एकदम परफेक्टली करना। ऐसा ही सम्स आएगा बोर्ड्स में। इन एडमिशन एंड डोनेशन 50-50 है ना, तो माइनस करके, पूरा है तो डायरेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट था सब्सक्रिप्शन एंड बिल्डिंग फंड।
क्या हो गया बोल। नहीं इधर क्या है? ये 97,900 आ रहा है। Yes. ये सब में where you will add your surplus deficit? क्या 10-11 ना? चेक क्या रहे सरप्लस देखो। 136 टोटल डेफिसिट ऑफ 37 तुम अपना कभी बिल्डिंग का चेक करना कितना पैसा है देखना, आँख चार हो जाए। ऑफ हो गया भाई, आंटी रुक गई, ऑफ हो गया। ऑडिबल? हेलो, Yeah. एक ही कान में है। ठीक है, एक चल रहा है तो वांधा नहीं। ठीक है बढ़ गया तो अच्छी बात। टोटल करो कितना था ऑटो कॉल? टोटल 723,550। चेक करो। अरे बोलने का नहीं, सुनने वाला होना चाहिए। इधर से आवाज उधर ही जा रहा है। चलो चेक द आंसर्स क्विक।
हो गया सर कभी तो जल्दी छूट जाएगा बोला करो जाओ I want you all to take sum number 15. All of you finish this. पहले ये सम का सब्सक्रिप्शन समझा 4 था। लास्ट ईयर का कितना मिला था अपने को? देखो पूरा का पूरा 17 मिल चुका है, दिख रहा है? हेलो, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो। ये सम का एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया था? सब्सक्रिप्शन ऑफ 17,000 ऑफ प्रीवियस ईयर वाज रिसीव्ड, दिख रहा है? इसके लिए हाउ मच डिड वी सबट्रैक्ट? फुल 70. व्हाट इफ यू वुड हैव रिसीव्ड ओनली 10? लास्ट ईयर का 17 में से 10 ही मिला होता तो कितना माइनस करते? 10, और एसेट में कितना दिखता? 7, जो अभी भी मिलना बाकी। समझा? जो लास्ट ईयर का मिला है वो माइनस, जो नहीं मिला है वो एसेट। समझा? केस के साथ तेरा 1 हफ्ता चलता होगा ना? केस के साथ का नाम क्या है? राइट लेफ्ट में क्या? देखो सर, एक बार अनकंफर्टेबल लगा तो स्विच कर देगा। ना कुछ ऑन ऑफ नहीं करने का। एयरबड्स प्लस की खाली बड्स? अभी डालेगा तो होएगा ही ना। अरे केस तो बैटरी नहीं है, 3 हफ्ते से चार्ज लेके रखे। सब गया गुजरा। तुम लोग चार्जिंग करता है कि नहीं करता है? 10% ही बता है। चलो वीडियो ना यार आवाज नहीं आ रहा, बहुत लो है। कौन बोला? आया 90% है। नहीं आ रहा सर अभी भी। हीलो मैंने बोला ना बैटरी। मेरे को सुनाई दे रहा है। निशांत बोल रहे हैं अरे कर ऑडिबल ना? और देखो ना सर, ये रखना नहीं है, बंद नहीं होएगा। बंद कर उसको। देखो ना आवाज पड़ना था। इतना जल्दी ऑडिबल? No, sir. Now it's very low. सर नहीं आ रहा है आवाज। सर एक काम करो, छोड़ दो सर, छोड़ दो। ऑडिबल नाउ आलोक? Yeah. Come to 15th sum quickly.
Sum number 15, all of you take sum number 15, 1-5. 50. Prepare income and expenditure and balance sheet of Progressive Club Bombay. Very important sum, marker star. हाँ, सबसे पहला पेमेंट साइट, लास्ट सम फॉर द डे, सबसे पहला पेमेंट साइट पे आ जाओ. You can see sum number 15, 1-5. शुद्ध करके दिया हुआ है सब कुछ. देखो पेमेंट साइड पे आपको दिया, पहले तो मुझे बताओ, इज द फर्स्ट ईयर और कंटिन्यूइंग ईयर? सो सर्च फॉर कैपिटल फंड. Can you see capital fund? Yes. So is there any need to prepare opening balance sheet? No. Only income, expenditure and current year's balance sheet, right? Now salaries there are two, 6 and 7, which is the current year. 7. तो 06 का इधर क्यों दिख रहा है? पेड आउटस्टैंडिंग ऑफ, तो ये जाएगा लास्ट ईयर लाइबिलिटी. एंड विल यू सब्ट्रैक्ट इट? नो. व्हाई? अलग शुद्ध है, तो माइनस करने की जरूरत. सिंपली लास्ट ईयर लाइबिलिटी 06 वाला 500 रुपया. व्हाट अबाउट 4500? करंट ईयर एक्सपेंस. 4500 करंट ईयर एक्सपेंस. कैन यू सी दैट? रेंट, एक्सपेंस, पोस्टेज, एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी वापस 6 और 7. 6 का इधर क्यों दिख रहा है? लाइबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर. समझा? ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, ये साल पे किया है, बट विल यू सब्ट्रैक्ट? नो. व्हाई? शुद्ध है, माइनस करने की जरूरत नहीं है. वन इफेक्ट लास्ट ईयर लाइबिलिटी, दैट्स इट. इज दिस क्लियर? Yes. दिस आर Yes, sir. 07 07 expense. expense. Balance carried down, asset. Opening balance लास्ट ईयर asset. डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया तो कितना डालने का? इनकम, रेवेन्यू. सब्सक्रिप्शन भी 3 है, 6, 7, 8. 6 का इधर क्यों दिख रहा है? तो लास्ट ईयर एसेट में जाएगा, राइट? लास्ट ईयर का रिसीवेबल था, ये सब मिला है, लेकिन माइनस होगा कि नहीं होगा? क्यों इसमें माइनस किया, इसमें माइनस नहीं? ये अशुद्ध था, ये शुद्ध है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आई है? तो खाली लास्ट ईयर एसेट. देन 7000 किधर जाएगा? 07 वाला इनकम में, और 1500 करंट ईयर लाइबिलिटी बाय प्री रिसीव्ड है. नेक्स्ट ईयर का अब भी आ गया, विल यू सब्ट्रैक्ट इट? बाय शुद्ध ईयर वाइज दिया हुआ है, माइनस करने की जरूरत सिंपली लाइबिलिटी. एंड दैट सब टोटल ऑफ 9000 यू सिंपली इग्नोर. सब टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब टोटल है, सब टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन 9000 यू इग्नोर. Entrance is to be capitalized. Interest on investments, income. ये जंगली. Interest on investment of building fund है कि interest on investment है? Interest on सिर्फ investment है, that is income. What if it was interest on investment of building fund? Add to building fund. In building fund. बस एक ही. Receivable हो तो बेटा. Expenses outstanding on 31st March 07. 07 म्हणजे बोलो करंट ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग. क्या करो? Add to salary and liability. देना बाकी है. प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, क्या करने का? Add to printing and liability. आता गम्मत. Other balances on 1st April 06. What is 1st April 06? Last year. Last year capital fund था 1 लाख, बनेगा ये साल का ओपनिंग. लास्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था 11500 सरप्लस लायबिलिटी. लास्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा ये साल का लायबिलिटी ओपनिंग. अलग अलग दिया दिख रहा है, कैपिटल फंड और इनकम एक्सपेंडिचर. क्रेडिट बैलेंस मतलब वो सरप्लस. क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी टू लायबिलिटी. अभी किया ना लास्ट समय हमने 23,300. देखो मुझे बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर और कैपिटल फंड दोनों अलग अलग दिया है, आप भी अलग अलग दिखाओगे. और ये साल का सरप्लस डेफिसिट किसमें से एडजस्ट होगा? इनकम एक्सपेंडिचर. कैपिटल फंड में से एडजस्ट नहीं होगा. किसमें से एडजस्ट होएगा? एक साल पहले किया ना अभी 23,300. समझा क्यों अलग से दिखा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ना हर साल का सरप्लस अलग से दिखा है. वो 11,500 में अभी तक का पड़ा हुआ सरप्लस.
इस साल का भी सरप्लस ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो माइनस, नॉट फ्रॉम कैपिटल फंड बट फ्रॉम income and expenditure. Is this clear? Because they have given it separate. Then furniture किधर जाएगा? Last year asset से current year, investment last year asset से current year, subscription outstanding for 07 current year outstanding. Add to subscription and asset. Is that clear? Dots देना है current year subscription पे एक dot, current year salary पे एक dot. सब्सक्रिप्शन तो डॉट नीचे डायरेक्टली डालना, करंट ईयर 07 पे एक डॉट, सैलरी 07 पे एक डॉट, प्रिंटिंग 07 पे एक डॉट, और क्या है? Subscription 071 dot. वो तो बोला, सब्सक्रिप्शन 071, सैलरी 071, प्रिंटिंग 07, दैट्स इट, 3 डॉट्स. આમાં યર વાઇઝ આપેલું હતું ને બધું શુદ્ધ શુદ્ધ કરીને, वो तो उल्टा काम का है. एक्सपेंस में काम का तो अच्छा है हाँ. समझ में भी आना We are चाहिए. supposed to make last year balance sheet, right? Sorry, what did you say? Repeat. In this sum, we are supposed to make last year balance sheet, right? No. No. Why you won't make last year's balance sheet? We are given the Capital fund is given. If you want to do for practice, you can. okay, sir. Okay? Practice के लिए करने का तो करो, करना जरूरत नहीं. कैपिटल फंड दिया हुआ है तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. इन द बुक्स ऑफ कौन है ये? प्रोग्रेसिव क्लब बॉम्बे. इधर कौन सा सैलरी दिखेगा? खाली लास्ट ईयर वाला नहीं दिखेगा, करंट ईयर वाला ही दिखेगा. उसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000. हो गया 14 को. बट वो दोनों साइड था. एक सेकंड हो जाता है. आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग हो गया. 1,1,4,5,0. हाँ 1,00,000 हो गया. विदाउट
कितना आ रहा है टोटल? 1,14,500 बैलेंस शीट। अरे ये 16,500 और डेफिसिट 2,000। डेफिसिट ऑफ 2,000। इसमें से माइनस करने का करंट ईयर का डेफिसिट 2000। टोटल 1,14,500। एक और हो जाएगा। फ्राइडे आई एम गिविंग यू हॉलीडे, डू वन मोर। फ्राइडे हॉलीडे दे रहा हूँ प्लीज एक नहीं, छोटा सा सम, बस ना आज के लिए, बस अभी क्या बोले लास्ट एक सम कर लो। फ्राइडे हॉलीडे दे रहा हूँ, वन सम यू डू बस। तुम लोगों को रेगुलर 11:30 तक का ही टाइम में बिठा रहा हूँ ज्यादा। Oh my God, Hello, complete. Any doubt in this you ask? All of you take sum number 27. ग्रुप भाई एकदम इजी। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड हो गया। हो गया घर वाले, ये सम डन नेक्स्ट बैच हो जाएगा। कर लो, कंप्लीट कर लो। Yes, are done. एक करेक्शन है, 27 चलो करो डिस्कस। 27 मार्क अ स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट सम। 27th sum. See, 27th sum, you are given again opening balance sheet and receipt payment account. Can you see that? Yes. बाकी जा। See, sum number 27. Following is the accounting information for the year 2009-10 of a cricket club Pune. You are required to make income expenditure account as on 31st March 10 and balance sheet as on that date. Now make a correction. आपको 1409 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? नीचे है ना रिसीट पेमेंट अकाउंट है ना, जो दैट इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010। करंट ईयर क्या है आपका? 9-10। 9-10 इज करंट ईयर। तो 31st March 09 का आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट, 31st March 10 का बनाने, बराबर है? अभी पेमेंट से चालू करो। मुझे बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैश का इधर है, बैंक का इधर है। कैश का किधर जाता है? नो इफेक्ट। हाँ, अपना नो इफेक्ट, लेकिन जाएगा किधर? लास्ट कैश किधर जाएगा? ये
लास्ट ईयर एसेट कैश टू बैलेंस बीडी और बैंक ओडी लास्ट ईयर लायबिलिटी ओपनिंग बैंक का बैलेंस हो। तो ये साल देखो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में दिखेगा आपको लास्ट ईयर लायबिलिटी 37,400 दिस ईयर नो इफेक्ट दिस ईयर विच बैलेंस यू राइट करंट ईयर बैलेंस पहले भी एक समय आया था ना बैंक कोड ऊपर लास्ट ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस नीचे समझा पेमेंट साइड में दिया है तो लास्ट ईयर रिसीट साइड पे दिया तो करंट ईयर नीचे दिया करंट ईयर बराबर नाउ ओपनिंग बैलेंस कैश लास्ट ईयर एसेट ओपनिंग बैंक कोडी रीपेड से कोई फर्क एक ही बात है वो रीपेड मतलब पेमेंट साइड पे दिखेगा लास्ट ईयर लायबिलिटी इज दिस क्लियर हेलो सैलरीज इधर जाएगा एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस expense rent and taxes expense printing stationery entertainment expense balance carried down is there any OD in the current year दोनों नॉर्मल बैलेंस हो गए ऊपर का OD था और रीपेड मतलब वो सेटअप हो गया पेमेंट कम है रिसीट ज्यादा है एंड में क्लोजिंग बैलेंस है ऑडिट ऊपर का OD था लेकिन अभी कोई OD बचा नहीं अभी रिसीट्स आ गया बैंक का रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट सो इट इज नॉर्मल बैलेंस कैश इन एंड कैश एट opening balance is last year asset you can verify in the last year asset subscription 3 दिया लेकिन year check करो 7 8 8 9 9 10 what is the current year 9 10 is the current year so what is 8 9 last year and what is 7 8 last to last year अब देखो लास्ट ईयर का 2000 अभी मिला है ना लास्ट ईयर का 2000 तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ होगा लास्ट ईयर का अभी क्यों मिला लास्ट ईयर का रिसीवेबल होगा चेक करो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट कितना है 2500 है हाँ 2500 है ना लास्ट ईयर एसेट और मिला कितना है 2000 मतलब 500 अभी भी मिलना इसको क्या बोलते हैं स्टील इन तो करंट ईयर एसेट में कितना दिखेगा उसका 500 लास्ट ईयर का समझे आपको एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 8-9 दैट इज 500 रुपीज स्टिल मिलना बाकी समझाया कैसे समझा ध्यानशी लास्ट ईयर एसेट कितना दिया था 2500 और ये साल रिसीट में कितना मिला है 2000 तो अभी भी कितना मिलना बाकी है 500 so that will go to current year asset अच्छा जो 2000 मिला will you subtract it from current year subscription why शुद्ध है ईयर वाइज दिया है माइनस करने की जरूरत अब वो 1800 देखो 1800 लास्ट टू लास्ट ईयर का 1800 7-8 का वो क्या है वो यहाँ पे क्यों दिख रहा है लास्ट ईयर मिलना बाकी था दिख रहा है लास्ट ईयर बैलेंस शीट में 1800 था ये साल 1800 मिल चुका है कुछ भी करने की जरूरत है कुछ भी स्टिल इन एरियर्स है What if ऊपर 1800 होता और रिसीट साइड पे 1000 ही मिला तो वापस करंट ईयर एसेट में कितना दिखता 800 स्टिल इन जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक वो एसेट में दिखता है जिस साल मिल गया उस साल रिसीट में आता समझ आई तो 1800 का तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है वो 2500 में से 2000 मिला है तो 500 अभी भी मिलना बाकी गो टू करंट ईयर सॉर्टेड और करंट ईयर में किधर जाएगा 6500 इनकम હવે આવશે હમણાં ઇન્કમ सब टोटल ऑफ 69,300 इग्नोर मारना है हेलो यहां तक क्लियर है सब्सक्रिप्शन घर वाले ऑल 3 आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लियर लास्ट ईयर एंड करंट ईयर देन डोनेशंस किधर जाएंगे पढ़ो हाँ डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड क्या करने का ऐड टू बिल्डिंग फंड लायबिलिटी ऐड टू चेक करो बिल्डिंग फंड है क्या कुछ ऊपर है दिख रहा है वो कहां से कहां आएगा लास्ट ईयर लायबिलिटी से और ये फंड उसमें क्या हो जाएगा डोनेशन अभी अभी बोला ना फंड रिलेटेड इनकम ऐड और फंड रिलेटेड एक्सपेंस फंड में से माइनस हेलो एक सम पहले किया था ना बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर से करंट ईयर और इंटरेस्ट ऐड किया वैसे डोनेशन क्या करने का ऐड और पैसा लिए बिल्डिंग फंड
एंटरटेनमेंट रिसीट्स, इनकम, एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है? एड टू कैपिटल फंड, घड़ी घड़ी नहीं आएगा। देन लास्ट ईयर बैलेंस शीट पे जाओ, बताओ मेरे को लैंड क्या करोगे 120, लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है ये सब में? एक्सपेंस है कि एसेट है? क्यों एसेट बोल रहे हो? वेरी गुड, दिख रहा है आपको डेप्रिसिएशन? कैन यू सी डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल्स? Smith, what does it indicate? Depreciation. It is an asset. It is an asset. Last sum में कोई depri था? I mean last to last sum, no depri. So that time it was expense. Here it is asset. So asset है तो क्या करने का? Last year asset से लेके आने का current year asset. Is this clear? Cash in hand is opening balance already written. Outstanding already written in receipts. वही repeated है. 500 स्टिल इन है। कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। बिल्डिंग फंड क्या करोगे? बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर लायबिलिटी है, करंट ईयर लायबिलिटी। बैंक ओडी लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। डोनेशन ऐड हो बराबर। बैंक ओडी कुछ करना है? कुछ नहीं, लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ही है। कम टू करंट ईयर एडजस्टमेंट, डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, क्या करने का? ऐड टू बिल्डिंग फंड। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज देख लिया हमने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500, कौन सा आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? एड टू करंट ईयर एंड एसेट। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या करने का? लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर। क्विकली गिव द डॉट्स। 1 dot on donations, 1 dot on entrance fees, 1 dot on current year subscription, 1 dot on donation, 1 dot on entrance fees, 1 dot on current year subscriptions, 1 dot on sports material, sports material ऊपर मिलेगा। That's it, I think. Donation एक, entrance fees एक, subscription एक और sports material खत्म हो गया। सुन चलो करो फटाफट, स्टार्ट करो। टैली हो गया? बोलो एनी डाउट्स घर वाले इन दिस? आ रहे हैं अभी ग्रिप एनपीओ पे? बाय दिस टाइम यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन एनपीओ। 80% चैप्टर इज डन। आवड़े છે घरवाला? Any doubts, difficulties, queries? Tell me in this sum. जम रहा है तो स्टार्ट करो, नहीं आ रहा है तो पूछ के करो, बट पूछना, डोंट कॉपी। बोलो 12.5 तो डिवाइड बाय 8, वेरी गुड शॉर्टकट। 12.5% is simply divide by 8. It's a shortcut. रिसीट पेमेंट में डेट का करेक्शन है, इट इज ईयर एंडेड 31st March 10, करंट ईयर इज 9/10।
98. Entertainment expense. Entertainment expense. Expensive. Entertainment income. But actually, 163. Save 160. लिखा है दोनों का रोड है रेंट और टैक्सेस कौन लिखेगा रेंट और टैक्सेस पूरे नहीं लिखा है इसमें नहीं आपके के अंदर So is it tallying at 1,63,000? Anyone has tallied here? 160? 163,000 surplus deficit? 28,400. Surplus कितना बोला deficit? What's your surplus or deficit? Surplus of 28,400. Check. Surplus of 28,400 आ रहा है क्या? Sir, हाँ. so I have a doubt. 1 second ना. इसका total बोल दो. इसका total 75,800. Outer column. 98,000. Sorry, 98. 98,000. 98 ना. हाँ बोलो क्या था डाउट? क्या था डाउट क्या था? हाँ. सर इन द प्रीवियस टाइम आल्सो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था प्रीवियस ईयर का 300 था सर वो भी दिया था कि दैट वाजंट पेड ना तो वो एसेट में हमने क्यों नहीं लिखा था? Previous year the outstanding subscription 300 in which sum? So one of the sums that we did today. Right. But there they had not specified no, whether you had received or not. Nothing was specified, right? So उसमें दिया था that 300 like none of the amount is received or something. In the adjustment of it was given. No. The adjustment it was given that previous year's receivable is 300 rupees. ऐसा दिया. हाँ. So Previous years we haven't received it this year ना. So we have. ऐसा थोड़ी दिया कि अभी भी मिलना बाकी है. We have received it. Oh, okay. Sir. I think you are talking about. So printing वाला 300 था because we didn't. हाँ, printing वाला 300 के बारे में दिया था. हाँ, outstanding printing of 06 are still payable ऐसा दिया. Sum number 19. Still payable दिया था ना. तो last year liability and current year liability अभी भी देना बाकी. तो liability तो minus नहीं होगा. बट देखो सैलरी का इन्फो नहीं दिया है, सब्सक्रिप्शन का इन्फो नहीं दिया है, एंट्रेंस फीस का इन्फो नहीं दिया है. देखो वो भी सब रिसीवेबल पेएबल उसमें इन्फो नहीं दिया है. तो मतलब अज्यूम करने का कि ये साल पेड और रिसीव्ड है तो माइनस. The surplus you have written 75,800 in the balance sheet. It is 28,400. 28.
ओके यस तो डाउट है तो रुको अदरवाइज यू कैन लीव तुमको समझा रिया No, sir, not really. मुझे समझ में अच्छा नहीं वेट 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 आई एक्सप्लेन डाउट है तो वेट